ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਟਨ ਹੀ ਦੱਬਣਾ ਬਸ। ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ 25 ਮਈ ਭਾਜਪਾ गई। कसूर ये है कि हमने दिल्ली में और पंजाब में आप लोगों की बिजली फ्री कर दी, इसलिए जेल में डाला। ये नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। अगर आप झाड़ू का बटन दबा दोगे मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर दूसरा बटन दबाओगे तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। आम आदमी पार्टी है केवल जो इन लोगों से लड़ रही है, इसी वजह से ये हमारे पीछे पड़े हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रखा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੱਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੋਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਟਨ ਹੀ ਦੱਬਣਾ ਬਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਵ ਯੂ 2, ਲਵ ਯੂ 3 4 5। ਵੀਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾਈ ਆ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ। 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਰੱਖਿਓ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ 25 ਮਈ ਭਾਜਪਾ गई। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਹੀਰੋ 13-0। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਹੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਹੀਰੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਨੂਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਆ ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਹਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਟਨ ਜਿੰਨਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ बढ़ा ਦਿਓ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ। बोले सो निहाल, भारत माता की इनकलाब। दोस्तों मैं जेल से निकल के सीधा आप लोगों के पास आ रहा हूं। इन लोगों ने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया था। मान साहब मेरे से मिलने आया करते थे जेल में। मैं मान साहब से यही पूछता था, पंजाब में सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग खुश हैं, मैं सोच रहा था इन लोगों ने मेरे को जेल में क्यों डाला, मेरा कसूर क्या है।
मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है, बस 2 राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में। कसूर ये है कि हमने दिल्ली में और पंजाब में आप लोगों की बिजली फ्री कर दी, इसलिए जेल में डाला। ये नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। मेरा कसूर ये है कि हमने दिल्ली में और पंजाब में आपके स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए जेल में डाला। ये नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो, ये नहीं चाहते आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मेरा कसूर ये है, आप लोगों के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं हम लोग, आपके लिए फ्री दवाइयों का, इलाज का इंतजाम कर दिया। विडंबना तो देखो, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए मैंने सबका इलाज फ्री कर दिया, सबकी दवाइयां फ्री कर दी। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरे को 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है, रोज मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लगता है। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। 300 350 पहुंच गई मेरी शुगर। अगर शुगर ज्यादा दिन रह जाए तो आदमी का लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ऊपर वाले की कृपा देखो, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन की मोहलत दे दी और मैं आप लोगों के बीच में आज मिलने के लिए चला आया। अब ये लोग कह रहे हैं 20 दिन के बाद मेरे को जेल जाना पड़ेगा दोबारा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप झाड़ू का बटन दबा दोगे, मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर दूसरा बटन दबाओगे तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। जब आप वोट डालने जाओ तो ये याद रखना, जब आप बटन दबा रहे हो, याद रखना कि बटन आप केजरीवाल की आजादी के लिए दबा रहे हो या केजरीवाल को जेल भेजने के लिए दबा रहे हो। दूसरी बात, ये कह रहे हैं हमें 400 सीट, 400 पार, 400 पार। हमने इनसे पूछा 400 सीट क्यों चाहिए? बोले मोदी जी को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हमने कहा क्या बड़े काम करने हैं, बताया नहीं इन्होंने। फिर बड़ा खोद खोद के पूछा तो पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगर इनका बहुमत आ गया तो ये SC, ST, OBC इनका रिजर्वेशन खत्म करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म करेंगे, दोबारा चुनाव कराने बंद कर देंगे। इस देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। आम आदमी पार्टी है केवल जो इन लोगों से लड़ रही है, इसी वजह से ये हमारे पीछे पड़े हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रखा है, लेकिन हमारे लिए कोई जेल, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है। तो इस बार जब झाड़ू का बटन दबाओ तो ये याद रखना, वो बटन आप संविधान बचाने के लिए डाल रहे हो और देश बचाने के लिए डाल रहे हो। आप अपने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी जेडे जेल तो रिहा होकर सीधे साडे को आए हैं, मैं इन्हों पूरे अंबरसर वालों विश्वास दिलाना कि सर ताड़ी रिहाई वास्ते बटन की जो सानू जान देनी पई, अं जान भी दे देंगे, सानू जेल भी जान देंगे। ताड़ी जित होगी पंजाब दे विच, जेडे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने तुसा जेड़ा नारा 13-0 का दिता, सर 13 जित के देवांगे। अमृतसर की सीट जित के सर फिर तुहाडे को आवांगे। अं सारे अमृतसर के वलंटियर पार्टी आगू तुहानू विश्वास दिलाउने कि पूरी पार्टी तुहाडे नाल है और असीं मोदी का हर हथकंडा जिहड़ा अमृतसर की धरती के उत्ते फेल कर देंगे। सो मैं एक बार फिर अपने कौमी कन्वीनर जी नूं, पंजाब के मुख्यमंत्री जी नूं
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਪਾਠਕ ਜੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।